Hello everyone, we are doing trigonometry from basic to advanced. This lecture series is very important for those who is preparing for JEE mains and advanced, right? So in this lecture series we have already done two videos, right? If you did not watch those videos, please watch those video before watching this video, right? So in this video we are going to discuss the values of angle of trigonometric ratios. फॉर एग्जाम्पल आपके पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। तो थीटा मतलब यहाँ पे क्या, थीटा कोई एंगल है। तो जब थीटा कोई एंगल है तो उस एंगल की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो वो हम इस वीडियो में देखेंगे, राइट। तो कुछ एंगल्स होते हैं उनकी वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। जैसे आपके पास 0 डिग्री, फॉर एग्जाम्पल 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, राइट, 60 डिग्री, 90 डिग्री। So for all the trigonometric ratios, you must know all these values, right? For example, you must know the value of sine 0, right? Sine theta. I am writing here sine theta, right? Let me make one more column. So this is sine theta. Right, the value of sine theta is 0. Means what? If you are taking theta is equal to 0, it becomes sine 0. So sine 0 is 0, right? If you take theta is equal to 30 degree, then it becomes sine 30. So the value of sine 30 is 1 by 2, right? If you take theta is equal to 45, the value of sine 45 is 1 by root 2. If you take theta is equal to 60 degree, then the value of sine theta is root 3 by 2, and if you take sine theta is equal to 90 degree, then the value of sine 90 is 1, right? For the same logic, if you want to calculate cos 0 means you take theta is equal to 0, theta is equal to 30 degree, theta is equal to 45 degree, theta is equal to 60 degree, theta is equal to 90 degree. If you take theta is equal to 0 degree, then the value of cos 0 is 1, right? If you take theta is equal to 30 degree, then the value of cos 30 is root 3 by 2. If you take theta is equal to 45 degree, then the value of cos 45 is 1 by root 2. The value of cos 60 is 1 by 2. Then the value of cos 90 is 0, right? In the same manner, if you want to calculate the value of sine tan, right? Tan, you don't need to remember the value of tan theta. I will recommend you to remember these two values only, right? हालांकि इनका भी तरीका होता है, लेकिन हम उसमें नहीं पढ़ेंगे। हम we are keeping us very simple, right? If you want to calculate the value of tan theta, theta is equal to 0, then the value of tan 0 is 0. Theta is equal to 30 degree, then the value of tan 30 is 1 by root 3. If you take the value of theta is equal to 45, then the value of tan 45 is 1. If you take theta is equal to 60 degree, then the value of tan 60 is root 3, and tan 90 is not defined. You write ND. ND means it is not defined, right? And it is very simple to calculate tan value of tan, because tan theta is equal to, I have already told you, tan theta is equal to sine theta by cos theta. If you want to calculate tan 0, so you place the value of theta is 0, so you will get sine 0 upon cos 0. Sine 0 is 0, cos 0 is 1, so 0 by 1 is nothing but 0. For the same logic, if you place theta is equal to 30 degree, then tan theta is equal to sine 30 degree upon cos 30 degree. The value of sine 30 is 1 by 2, the value of cos 30 is root 3 by 2, and 2 and 2 will get cancelled. Then you will get the value of tan 30, that is 1 by root 3. For the same logic, you can calculate tan 45, you can calculate tan 60, you can calculate tan 90 as well. If you want to calculate cot, trigonometric ratio cot 0 or cot theta, if you want to calculate cot 0, you will get not defined, because cot is nothing but cos upon sine, or you can say 1 upon tan. So 1 upon tan 0 is 0, so that will be not defined. The value of cot 30 is root 3, the value of tan 45 is 1, the value of
cos 60 is 1 by root 3 and it is 0. For in the same logic you can calculate sec theta as well. Sec theta is the reciprocal of cos theta. You can calculate cosec theta. Cosec theta is the reciprocal of sin theta. So what is the value of sec 0? Reciprocal of cos, that is 1 upon cos 0, or cos 0 is nothing but 1, right? So sec 0 is 1. What is the value of sec 30? Sec 30 means what? If you calculate sec 30 is equal to 1 upon cos 30, because sec 30 is, sec is reciprocal of cos, and you know the value of cos 30 is, that is 1 by root 3 by 2, so it will be 1 upon root 3 by 2, so you will get 2 by root 3, right? So here you can write 2 by root 3, and the value of sec 45 is the reciprocal of cos 45. Cos 45 is nothing but 1 by root 2. Then the reciprocal of 1 by root 2 is nothing but root 2, right? For the same logic, you will get 2, and for the same logic, you will get not defined, because the reciprocal of 0 is not defined. 1 by 0 is not defined. That is infinite, you know. And what is the value of cosec theta? Cosec theta is the reciprocal of sin theta. If you want to calculate cos 0, then the reciprocal of, if you want to calculate cosec 0 is nothing but, 1 upon sin 0. And what is the value of sin 0? That is 0. 1 by 0 is again not defined. And what is the value of sec 30? Sec 30 is the reciprocal of sin 30. Sin 30 is 1 by 2. And the reciprocal of 1 by 2 is nothing but 2. And here it is root 2. Here it is 2 by root 3. Here it is 1. So these are the values which you need to remember every time. राइट, ये वो वैल्यूज हैं जिनको आपको पूरी तरीके से याद रखना है, राइट। इनके हेल्प से बाकी जो एंगल्स की वैल्यू है वो आप कैलकुलेट कर पाएंगे। इसलिए मेरा हाईली रिकमेंडेशन ये है कि आपको ये सारी वैल्यू याद रखना है, कम से कम ये साइन थीटा और कॉस थीटा वैल्यू याद रखिए। फिर इसके बाद ट्रिग्नोमेट्रीज के बहुत सारे इंटर रिलेशन बताए गए हैं, मतलब साइन थीटा का रिलेशन tan के साथ कैसा है, कॉस के साथ कैसा है, इस तरह की सारी बातें आपको बताई जा चुकी हैं। तो आपको पुराने वीडियोस देखने चाहिए इस वीडियो में देखने से पहले, राइट। अब हम बाकी एंगल्स की वैल्यू निकालना सीखेंगे, तो उससे पहले बाकी एंगल में जाने से पहले हम लोग स्टडी करेंगे मेजर ऑफ एंगल, मेजरमेंट ऑफ एंगल, ठीक है। एंगल का मेजरमेंट आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं कि एंगल का मेजरमेंट बेसिकली जिस तरीके से आप मास जानते हैं, मास का मेजरमेंट आप किलोग्राम में कर सकते हैं, आप ग्राम में कर सकते हैं, आप मिलीग्राम में कर सकते हैं। सो दीज आर द डिफरेंट मेजर ऑफ मास। In the same way, there are different way of measuring of angles that you must know, right? So what are those? So let me tell you what are those. There are two important angle measurement. One is that degree measurement, which you are very familiar, degree measurement, right? You are very familiar with this measurement. And the second is radian measurement. Again, you are may or may not be familiar with this measurement, but I am here to tell you what is degree measurement, what is radian measurement. Degree measurement you know well, right? That is 0 degree, 30 degree, 45 degree, 60 degree, 90 degree, 180 degree. These are the degree measurement. And there are some radian measurement. There are some radian measurement. If there is pi, what is pi? Pi is an irrational number. It is an irrational number, right? Or what is irrational number? Number which cannot be written in the form of p by q, but it is somewhere equal to 22 by 7. Somewhere means what?
ये जो पाई की वैल्यू है 22/7 कभी नहीं होती है, लेकिन डेसिमल के 2 प्लेसेस तक पाई की वैल्यू और 22/7 की वैल्यू मैच करती है, इसलिए हम दोनों को कह देते हैं इक्वल है, राइट। तो पाई की जो वैल्यू है पाई इज इक्वल टू 22/7 आपने अभी तक पढ़ा है, लेकिन एक मैं आपको पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री भी बताऊंगा, राइट। 180 डिग्री भी आपको पाई इज इक्वल टू बताया जाएगा। ये डिग्री में है, ये आपका रेडियन में है, और रेडियन में अगर आप पाई इज इक्वल टू 22/7 लिखते हैं तो आप कहेंगे पाई की वैल्यू 22/7 रेडियन में, और डिग्री में कितना है 180 डिग्री। तो आपके पास दिमाग में बात ये आ रही होगी, सर ये कहां से आ गया, ये अचानक से एंगल वे कैसे हो गया, राइट। याद करो, आपको एंगल इक्वल टू कभी पढ़ाया गया होगा आर्क अपॉन रेडियस, आर्क अपॉन रेडियस। अब आर्क अपॉन रेडियस मतलब क्या, आप देखो यहां पे ये आर्क है, अगर आप इतनी आर्क आपने ले ली, ये आर्क, दिस इज आर्क एंड दिस इज रेडियस, ये आर्क है, ये रेडियस है, तो ये एंगल आपके पास बन रहा है थीटा, बन रहा है। तो अगर मैं आर्क की जगह पे पूरा सरकमफरेंस ले लूं तो सरकमफरेंस बेसिकली कितना होता है, सरकमफरेंस होता है 2 पाई आर, आपको बताया क्या होगा। आर्क में ये इतना आर्क ना लेके पूरा आर्क ले लिया मैंने, और एक सर्कल के द्वारा एंगल कितना बनता है 360 डिग्री बनता है। तो आप देखिए 2 पाई आर अपन में आर आएगा कि नहीं आएगा, तो आर एंड आर विल गेट कैंसल्ड, और इस पूरे की जगह पे कितना एंगल बनता है 360 डिग्री बनता है। तो इधर पे 360 डिग्री लिख दो, इधर पे 2 पाई लिख दो, 2 से काट दीजिए तो पाई इक्वल टू कितना आ जाता है 180 डिग्री आ जाता है। दिस इज व्हाट इज वेयर वी हैव गॉट पाई इक्वल टू 180 डिग्री, राइट। और पाई इक्वल टू 22/7, तो वो तो अगर आप लिखते हैं पाई इक्वल टू 22/7 दैट इज आल्सो इक्वल टू पाई, बट दैट वैल्यू इज इन रेडियन, एंड इफ यू आर राइटिंग दैट इन डिग्री, दिस इज इन डिग्री मेजरमेंट। इन दिस दोनों ही केस में आपको एंगल रिप्रेजेंट कर रहा है। आई होप एंड बिलीव आपको समझ में आया कि ये बात कहां से आई, पाई इक्वल टू 180 डिग्री, राइट। तो इस पूरे डिस्कशन से हमको लेना क्या है, लेना आपको यही है कि पाई इक्वल टू आपको 180 डिग्री याद रखना है, ये तब जब डिग्री मेजरमेंट हो, और पाई इक्वल टू 22/7 या फिर 3.14। मैंने पहले बता दिया पाई की वैल्यू 22/7 नहीं होती है, क्योंकि 22/7 एक इर्रेशनल नंबर है, जबकि पाई एक रैशनल नंबर, सॉरी गलत बोल दिया, पाई एक इर्रेशनल नंबर है, जबकि 22/7 एक रैशनल नंबर है, और कभी भी इर्रेशनल रैशनल के इक्वल नहीं होता है, समझ गए। इसलिए पाई की वैल्यू 22/7 लॉजिकली नहीं होती है, लेकिन हम फिर भी लिखते हैं। क्यों लिखते हैं, क्योंकि अगर इसको आप पॉइंट के 2 प्लेसेस तक निकालेंगे तो 3.14 आएगा, और इसकी वैल्यू भी पॉइंट के 2 प्लेसेस तक निकालोगे तो 3.14 ही आएगा। इसके बाद दोनों की वैल्यू क्या हो जाती है, इसके बाद अलग हो जाता है, ये अलग हो जाती है, राइट। तो इसलिए हम पाई की वैल्यू 22/7 ले लेते हैं, लेकिन लॉजिकली दे आर नॉट इक्वल, बिकॉज पाई एक इर्रेशनल नंबर है, और जबकि 22/7 क्या है, रैशनल नंबर है। और हम 180 डिग्री भी लिखते हैं, तो ये डिग्री मेजरमेंट है, ये रेडियन मेजरमेंट है। अब बात आती कन्वर्जन की, तो अगर आपको 60 डिग्री को रेडियन में ले जाना है तो क्या करोगे, तो जरा समझते हैं। आपके पास 180 डिग्री इक्वल टू क्या है, पाई, तो 1 डिग्री इज इक्वल टू कितना आएगा, पाई अपॉन 180, तो 60 डिग्री इक्वल टू कितना आएगा, पाई अपॉन 180 into 60, so you will get pi/3, right. This is what is the unitary method. Unitary method से हमने ये पता कर लिया 60 डिग्री को आप अगर रेडियन मेजरमेंट में लिखना चाहें तो दैट इज pi/3, राइट। ऐसे ही तो मतलब यहां से टेक क्या निकलेगा, क्या हर बार यही करोगे क्या आप, सिंपली आपको डिग्री से किस में जाना है, डिग्री से रेडियन में जाना है, किस में जाना है, रेडियन में जाना है, तो आप मल्टीप्लाई कर देंगे पाई बाई 180 डिग्री का। आप डिग्री कोई भी एंगल लीजिए, डिग्री मेजरमेंट का कोई भी एंगल लीजिए, फॉर एग्जांपल आपने लिया 45 डिग्री, तो इसमें आपने पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई किया, दैट बिकम्स इन रेडियन मेजरमेंट, राइट।
अगर आपने पाई अपॉन 180 मल्टीप्लाई कर दिया तो किस में बन जाएगा, रेडियन मेजरमेंट बन जाएगा। तो ये आपके पास एंगल मेजरमेंट हो गया, रेडियन मेजरमेंट हो गया। कुछ स्टैंडर्ड एंगल है, जैसे आप 60 डिग्री, 0 डिग्री को तो 0 रेडियन ही कहते हैं, 30 डिग्री को अगर आप कहेंगे तो पाई बाई 6 आ जाएगा, और अगर 60 डिग्री को कहें, सॉरी 45 पता लिख लेते हैं, 45 डिग्री को अगर लिखेंगे तो दैट विल बी पाई बाई 4, और 60 डिग्री अगर आप लिखेंगे तो दैट विल बी पाई बाई 3, 90 डिग्री को अगर आप लिखोगे तो दैट विल बी पाई बाई 2। ठीक है, तो ये थोड़ा सा रेडियन मेजरमेंट, डिग्री मेजरमेंट मैंने आपको बताया। इसका यूज इसलिए क्योंकि हम लोग जनरली आगे जब हायर स्टडीज में जाएंगे तो हम 90 डिग्री लिखना कम पसंद करते हैं, पाई बाई 2 ज्यादा लिखते हैं, इसलिए मैंने आपको बता दिया कैसे डिग्री मेजरमेंट क्या होता है, रेडियन मेजरमेंट क्या होता है, यू मस्ट नो, राइट। अब आगे हम बात करते हैं कि अलाइड एंगल्स। अलाइड एंगल्स बेसिकली अब बात करेंगे अलाइड एंगल्स की। अलाइड एंगल्स, अलाइड एंगल्स बेसिकली है क्या? अलाइड एंगल्स का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए ये आपके पास एक्स एक्सिस कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ठीक है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये आपके पास एक्स एक्सिस है, यहां पे एक्स एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, राइट। अब यहां पे ये 0 डिग्री है, ये क्या है आपके पास 0 डिग्री। 0 डिग्री से अगर आप ऊपर की तरफ जाएंगे, 0 डिग्री से आप यहां तक जाएंगे, इट विल बिकम 90 डिग्री। 90 डिग्री मींस व्हाट, दैट इज पाई बाई 2। अगर आप 90 डिग्री से आगे जाएंगे तो इट विल बिकम 180 डिग्री, दैट इज पाई, यू कैन राइट पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। और इसके अगर इधर जाएंगे तो ये बन जाएगा आपके पास 3 पाई बाई 2, पाई पाई ऐड हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएंगे तो आपके पास हो जाएगा 2 पाई, यहाँ पे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा यहाँ पे 2 पाई, इट विल बिकम 2 पाई, ये यहाँ पे बन गया 2 पाई, राइट। तो अगर मैं एक चक्कर में एक बार और राउंड कर दूं, मुझे कोई पकड़ेगा थोड़ी ना, मैं एक बार नहीं एक बार और करूंगा, घूमूंगा, फिर और घूम के आओ, फिर और घूम के आओ, फिर और घूम के आओ, फिर यहाँ पे आ जाओ, फिर यहाँ पे आ जाओ। इस तरीके से आपका जो एंगल का फॉर्मेशन होगा, आप देख रहे हैं, आप 0 से चले थे यहाँ पे आपके पास 0 से चले थे, यहाँ पे 0 से चले, यहाँ पे हो गया पाई, 2 पाई हो गया, राइट। फिर यहाँ पे हो जाएगा 4 पाई, फिर और एक बार चक्कर लगाएं 6 पाई। ऐसे यहाँ पर भी क्या होगा, यहाँ पे पाई बाई 2 हुआ था, और जब यहाँ पे पाई बाई 2 जब एक बार घूम के आए, ये बन जाएगा 5 पाई बाई 2 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 5 पाई बाई 2 बन जाएगा। इधर पे आएंगे तो क्या बन जाएगा, 3 पाई बन जाएगा, समझ रहे हैं। फिर यहाँ पे आएगा तो क्या हो जाएगा, ये 7 पाई बाई 2 बन जाएगा। फिर यहाँ पे बन जाएगा, कितना हो जाएगा, 6 पाई हो जाएगा, 6 पाई हो जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा, 9 पाई बाई 2 हो जाएगा, 9 पाई बाई 2 हो जाएगा। फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5 पाई आ जाएगा। तो आपके पास बहुत सारे एंगल मिल रहे हैं। एक मिल रहा है आपके पास इवन पाई 0, 2 पाई, 6 पाई, नॉट 4 पाई, इसके बाद आपका 4 पाई है। यहां पे आपके पास 4 पाई, फिर 6 पाई, फिर आपके पास क्या आएगा, 8 पाई। ये जो एंगल है मतलब इवन पाई जो है, ये अलाइड एंगल है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के, यही होते हैं अलाइड एंगल, समझना जरा। दीज आर द अलाइड एंगल्स। इवन पाई डॉट 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 ऐसे याद रखना जाए, इवन पाई बाई 2, इवन पाई, पाई 2 पाई 4 पाई 6 पाई 8 पाई 10 पाई, जितने सारे पाई है इवन पाई, ये सब के सब दीज आर द अलाइड एंगल ऑफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस। माइंड वेल, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो कहने का मतलब क्या है, जो साइन 0 की वैल्यू होगी वही साइन 2 पाई की वैल्यू होगी, वही कॉस 4 पाई की वैल्यू होगी, वही कॉस मतलब 6 पाई की होगी, समझ रहे हैं ना। दीज आर द अलाइड एंगल। मतलब 0 के साथ कौन कौन अलाइड है, 0 के साथ 2 पाई अलाइड है, 4 पाई अलाइड है, 6 पाई अलाइड है, 8 पाई अलाइड है, और आपके पास क्या है, 10 पाई अलाइड है, राइट। इसी तरीके से आप यहाँ पे आइए, ऊपर आ जाइए। अब ऊपर क्या हो रहा है, ऊपर ऐसे हो रहा है, ऊपर आपके पास पहले तो पाई बाई 2, जब पहली बार चले तो पाई बाई 2 आए थे, जब दोबारा चले तो कितना आ गया, 5 पाई बाई 2 आ गया। कितना आ गया भाई, 5 पाई बाई 2 आ गया, 5 पाई बाई 2 आ गया। फिर जब तीसरी बार आएंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 9 पाई बाई 2 आ जाएगा। फिर ऐसे कितना आ जाएगा, 13 पाई बाई 2 आएगा। मतलब 4 का डिफरेंस देख रहे हैं आप,
4 का डिफरेंस, लेकिन नीचे 2 भी है, तो इसका मतलब कितना डिफरेंस है, 2 पाई का डिफरेंस है, क्योंकि हर बार एंगल कितना घूम के आएंगे, 2 पाई घूम के आएंगे, इसलिए बार बार 2 पाई का एंगल हो रहा है। ऐसे यहाँ पे क्या आ जाएगा, पाई आया था, फिर 3 पाई आएगा, फिर 5 पाई आएगा, फिर 7 पाई आएगा, फिर 9 पाई आएगा, मतलब जितने सारे ऑड पाई है ना, तो नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलाइड एंगल हैं। मतलब क्या, यहाँ पे पाई, यहाँ पे 3 पाई, यहाँ पे 5 पाई, फिर 7 पाई, दीज आर द अलाइड एंगल ऑफ, ये किसके अलाइड एंगल हैं, allied angles of what, allied angles of what, negative x axis, negative x axis, negative x axis, these are the allied angle of negative x axis। ऐसे ही ये क्या है, these are the allied angle of positive y axis, ये क्या आते हैं, allied angle of positive x axis। इधर भी आते हैं जरा, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे पहली बार जब घूम के आए थे तो 3 पाई बाय 2 था, फिर इसके बाद 7 पाई बाय 2, फिर इसके बाद क्या 11 पाई बाय 2, मतलब 4 बढ़ता जाएगा, 4 नहीं बढ़ रहा है बेसिकली, 2 पाई बढ़ रहा है, क्योंकि अपान में 2 भी तो है, ऊपर 4 बढ़ रहा है तो अपान में 2 पाई नहीं आ जाएगा क्या, तो 3 पाई बाय 2, 7 पाई बाय 2, 11 पाई बाय 2, तो दीज आर द अलाइड एंगल ऑफ नेगेटिव y एक्सिस, राइट, These are the allied angle of negative y axis। अब हमें इनकी वैल्यू निकालना है। अब हमने allied angle की तो बात कर लिया, लेकिन what about angle between these two, what about angle between these two, what about angle between these two, इनके बारे में भी बात करना है, इन्हीं की हमें वैल्यू निकालना है। मेरे कहने का मतलब ये है कि जब आप यहाँ पे यहाँ तक घूम रहे थे, पहले जब जा रहे थे, अगर मैं इसके अंदर की बात करूंगा तो वो क्या हो जाएगा, वो पाई बाय 2 से छोटा होगा कि नहीं होगा, 90 से छोटा होगा कि नहीं होगा भाई। तो इस जरा हम आगे लिखते हैं, तो मैं यहाँ पे फिर से वही बनाऊंगा। अब आपको पता चल गया, इधर पे 0 पड़ेगा, इधर पे 2 पाई भी पड़ेगा, इधर पे 6 पाई भी पड़ेगा, नहीं 6 पाई यार, 2 पाई के बाद 4 पाई आएगा भाई, यहाँ पे आपके पास 4 पाई आएगा, फिर 6 पाई आएगा, ठीक है, इधर ही आएगा ये, क्योंकि इसके अलाइड एंगल है। इधर पे क्या आएगा, इधर पे आपके पास पाई बाय 2 आएगा, फिर आपके पास 5 पाई बाय 2 आएगा, फिर आपके पास 9 पाई बाय 2 आएगा, फिर आपके पास 13 पाई बाय 2 आएगा, ऐसे चलता जाएगा। इधर पे क्या आएगा, पाई आएगा, 3 पाई आएगा, यहाँ पे आपके पास 5 पाई आएगा, फिर आपके पास 7 पाई आएगा, इधर आपके पास 3 पाई बाय 2 आएगा, यहाँ पे आपके पास 7 पाई बाय 2 आएगा, फिर आपके पास 11 पाई बाय 2 आएगा। इस तरीके से आप चलता जाएगा, ठीक है। तो मैंने जिस एक्सिस के जो अलाइड एंगल है मैंने उनको वहीं पे लिख दिया। अब मेरा काम ये है कि आपको ये बताना है कि इसकी वैल्यू, मतलब पाई बाय 2 माइनस थीटा, मतलब मैंने किस मतलब पाई बाय 2 माइनस थीटा लिखा, मतलब कौन से एंगल की बात कर रहा हूं, उस एंगल की बात कर रहा हूं जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। अगर मैंने लिखा 5 पाई बाय 2 माइनस थीटा, तो मैं उस एंगल की बात कर रहा हूं जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। समझ रहे हैं इस बात को, मतलब पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2, 9 पाई बाय 2, तो ये पॉजिटिव y एक्सिस में तो हो गया, लेकिन मैंने क्या कर दिया, इसे थीटा माइनस कर दिया, और जैसे थीटा माइनस किया तो दैट कम्स इनटू द फर्स्ट क्वाड्रेंट, एंड यू मस्ट रिमेंबर दैट थीटा, व्हाटएवर इज थीटा टेकिंग हियर, दैट मस्ट बी बिटवीन 0 एंड 90, तभी तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। अगर मैं थीटा ऐड कर दूं तो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा पाई बाय 2 प्लस थीटा, वो बन जाएगा 5 पाई बाय 2 प्लस थीटा, वो बन जाएगा 9 पाई बाय 2 प्लस थीटा। तो वो एंगल कहां पे आ जाएंगे, वो आपके पास एंगल आ जाएंगे सेकंड क्वाड्रेंट में। ऐसे ही अगर यहां पे जो एंगल है इनमें अगर मैं माइनस कर दूं या फिर ऐड कर दूं, माइनस करूंगा तो सेकंड क्वाड्रेंट पहुंच जाएंगे क्योंकि कम हो जाएगा, और ऐड कर दूंगा तो थर्ड क्वाड्रेंट पहुंच जाएंगे। मतलब पाई माइनस थीटा भी सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, 3 पाई माइनस थीटा भी सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, 5 पाई माइनस थीटा भी सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, 7 पाई माइनस थीटा भी सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। अगर इनको ऐड कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे पाई प्लस थीटा, 3 पाई प्लस थीटा, 5 पाई प्लस थीटा और 7 पाई प्लस थीटा, ये आपके पास आ जाएंगे। वही काम यहाँ पर अगर ऐड करोगे तो इधर आ जाओगे, सब्ट्रैक्ट करोगे इस तरफ आ जाओगे। मान लीजिए आपने कम किया तो 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा, 7 पाई बाय 2 माइनस थीटा एंड सो ऑन। अगर ऐड कर दोगे कहां पे आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा यहाँ पे 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा, 7 पाई बाय 2 प्लस थीटा एंड सो ऑन। अगर इनके साथ भी अगर आप माइनस करोगे तो 0 माइनस करो तो माइनस थीटा, 2 पाई माइनस करो तो 2 पाई माइनस थीटा, 4 पाई माइनस करोगे तो 4 पाई माइनस थीटा।
तो इस तरीके से मैंने सारे क्वाड्रेंट से रिलेटेड जो आपके पास एंगल थे वो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, राइट। ये जो है ये कहलाता है अलाइड एंगल। अब बात ये है कि इन अलाइड एंगल्स की वैल्यू कैसे निकालते हैं, राइट। तो उसमें साइन कन्वेंशन, राइट, उनकी वैल्यू कैसे, कौन किस में चेंज होगा, राइट, तो वो हम देखेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।